Hi students, so we were discussing about the histology or the internal structure of the alimentary canal. So we have discussed in detail that there are 5 different layers we can see if you have a section and we try to understand the alimentary canal. How many layers are there? अगर हम alimentary canal को अगर डिटेल में देखेंगे तो बेसिकली उसमें कितने लेयर्स होते हैं? 5 लेयर होते हैं. Visceral peritoneum, then उसके बाद muscular cord, then Mesenteric plexus, then after that we have your submucosa, and finally we have mucosa, right? So let us go back and discuss. Yeah. So here we can see this is the histology of alimentary canal. तो alimentary canal का अगर histology हम देखेंगे तो हमें क्या-क्या मिलेगा? The alimentary canal is consist of 4 basic layers. Okay, basically 4 होता है. एक हमने और extra discuss किया है, इसको हम मतलब मान भी सकते हैं या बाद में discuss करें तो भी चलेगा, ठीक है? जिसको हम Mesenteric plexus है, उसको हम normally इसके बीच में मान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन अब डिटेल में पढ़ेंगे तो 5 लेयर होते हैं, ठीक है? So the alimentary canal basically can consist of 4 basic layers from outer surface to the inward, that is towards the lumen. पहला होता है visceral peritoneum और serosa जैसे कहते हैं, हमने पढ़ा. It is made up of simple squamous epithelial or epithelium, and it is the outermost layer made up of squamous epithelium, right? उसके बारे में जो points डिटेल में था वहाँ पे भी लिखा हुआ था, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने लिखा होगा, तो मैं यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा. We'll move on very fast. Muscularis, it is composed of outer longitudinal and inner circular muscle fibers, and in between the muscles there is a network of nerve, and that is a parasympathetic. Those nerves are parasympathetic nerve fibers, and called Auerbach plexus or myentic plexus भी कहते हैं हम इसे. Auerbach plexus भी कहते हैं और myentic plexus भी कहते हैं, which control the peristalsis, right? Next है आपका सबम्यूकोसा. उसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है. उसके बाद उसके बीच में और एक नर्व सिस्टम, एक नर्व का और एक लेयर रहता है वो जो कि सिंपैथेटिक होता है, जिसको मेसेनरिक प्लेक्सस भी कहते हैं, है ना? तो आपने लिख लिया होगा वो. नेक्स्ट इज सबम्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू richly supplied with blood and lymphatic vessels. Now next is number 4, that is your mucosa, and it secretes mucus to lubricate the inner lining of the gut. तो गट मतलब ल्यूमेन को ही हम गट कहते हैं, ठीक है ना? जो अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं गट, ठीक है? इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया एंड एपिथेलियम, ठीक है? सो दैट इज अ क्विक revision of the parts of the topic we have discussed already. So we'll move on and we will talk about the new topic. We'll discuss the new topic today. Now, esophagus. After the bubble cavity, the part or the food pipe जिसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू फूड हमारे स्टमक तक जाता है, next part of the alimentary canal which is through which it is going, that is called esophagus, ठीक है? इसको हम food pipe भी कहते हैं commonly. So the esophagus starts from the pharynx and it is a narrow muscular thin tube. जो pharynx जहाँ पे खत्म होता है, pharynx का जो region है, laryngopharynx, उसके बाद से हमें क्या मिलेगा? We can see there is the opening and there is the tube-like muscular tube-like structure which is connecting the pharyngeal area with the stomach. और इसका लेंथ कितना होता है? नॉर्मली 25 सेंटीमीटर. कितना होता है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. एंड this actually goes through, it pierces the diaphragm, or diaphragm, not diaphragm, this is diaphragm, the pronunciation should be diaphragm. It pierces the diaphragm and enters the abdominal cavity. तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना होगा, आगे डायग्राम में भी है. I will just show you the diagram, then it will be easy for you to understand. Yes, so let us just have a look. ठीक है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं. This is the pharyngeal area, है ना? So this is the pharynx, this is the laryngopharynx area. So this is the food pipe, this is the esophagus, this is the windpipe or trachea जिसे कहते हैं. तो
ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, तो यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं गलट, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस, इट इज कनेक्टिंग द स्टमक विद ईसोफेगस। तो स्टमक के साथ ईसोफेगस हमें इसके थ्रू कनेक्ट कर देता है, ठीक है। सो इट इज कनेक्टिंग द ईसोफेगस कनेक्टिंग टू द विद द स्टमक एंड इट्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख सकते हो आई हैव ड्रॉन डॉटेड विद द हेल्प ऑफ अ डॉटेड लाइन, दिस इज द डायफ्राम। तो अगर आप देखो, इफ दिस इज जस्ट अ मिनट, वेट, आई थिंक माय कलर इज नॉट, या सपोज इफ दिस इज द नेक रीजन, ठीक है, दिस इज द नेक रीजन, ओके, and after that we have the chest. I'm just making a schematic diagram, okay. So here inside the chest we have our lungs, यहाँ पे हमारा lungs होता है. Now the lungs is actually, and this lungs where the area or the region where the lungs is present, that is called thoracic cavity. हम इसे क्या कहते हैं? thoracic cavity. ठीक है, तो हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट है, जो thoracic cavity जिसमें lungs होता है और you know like heart is also present, दैट इज एक्चुअली सेगमेंटेड, वो मतलब सेपरेट होता है किसके कौन से पार्ट से, जो लोअर पार्ट, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारे बॉडी में दो पार्ट होते हैं, अपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, जिसके अंदर लंग्स, हार्ट, ये सब रहता है, हमारा जो वाइटल ऑर्गन है। और उसके बाद जो लोअर पार्ट है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो दो पार्ट है, अपर एंड द लोअर, ठीक है, तो अभी लोअर पार्ट जो होगा ये नीचे वाला पार्ट होगा, दैट इज डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। ठीक है, एक डायफ्राम बोल के स्ट्रक्चर जो होता है, इस स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर, जो कि डिवाइड करता है हमारे दो जो कैविटी है, जो चेंबर है, एक होता है अपर वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी, लोअर वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे हमारे स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, किडनी, ये सब यहाँ पे रहती है इस पार्ट में। लेकिन ये जो ईसोफेगस है, दैट इज अ लिटिल बिट एक्सेप्शन। ईसोफेगस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और डायफ्राम को क्रॉस करके, उसको पियर्स करके, उसको अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टमक होता है हमारा, यहाँ पे, ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो इट पियर्सेस थ्रू दिस डायफ्राम, ये जो सेपरेशन होता है, डायफ्राम जो स्ट्रक्चर होता है उसको पियर्स करके अंदर आ जाता है, उसको छेद करके अंदर आ जाता है, ठीक है, और उसको होल करके ये अंदर आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। So let us see, yeah, so if you see here I have तो यहाँ पे देख लेते हैं जब हम डायग्राम में आए हैं। So this part is called gullet, the opening of the esophagus, and it is connected with the stomach, ये stomach है। अब ये जो esophagus है ना, इसका भी अलग अलग जो पार्ट है, रीजन है, वो अलग अलग मसल से बना होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है 1/3 वो स्केलेटल मसल से बना होता है, बीच वाला जो 1/3 पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ स्केलेटन एंड स्मूथ मसल, दोनों से बना होता है। और जो लोअर लास्ट वाला पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल ओनली, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट अस गो बैक एंड डिस्कस नाउ द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस, इट इज कॉल्ड गलेट, राइट। ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस उसे हम क्या कहते हैं? गलेट कहते हैं। एंड द लोअर ओपनिंग इज guarded by a circular muscular structure or a muscle known as cardiac sphincter। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ईसोफेगस के साथ, अभी हमने देखा ना, ईसोफेगस के साथ, नेक्स्ट पेज में ही है, देखो ईसोफेगस के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है ना, दिस इज द पार्ट वेयर ईसोफेगस इज कनेक्टेड विद दिस स्टमक। तो यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो जो मस्कुलर जो सर्कुलर मसल होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं हम उसे? कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है ना, नॉर्मली ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है, जो कि ईसोफेगस के लोअर पार्ट और स्टमक के बीच में रहता है, ये हमेशा बंद रहता है, नॉर्मली ये क्लोज रहता है, ठीक है। और जब हम कुछ भी खाते हैं ना, व्हेन वी स्वैलो सम फूड एंड व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द स्टमक देन इट ओपन्स, ठीक है। जब हम कुछ खाते हैं और ईसोफेगस के थ्रू वो जाता है, तब जाके ये ओपन होता है और फिर जो फूड है जो हमने खाया वो हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। सो दैट इज द प्रोसेस, फाइन। सो दिस इज द डायग्राम, यू शुड पॉज एंड यू शुड ड्रॉ इट। सो ये वाला ही बना लेना। सो आई एम जस्ट गिविंग
You just pause it and you draw it. This one also you just pause and you draw. So I think you have done it. Okay, fine. So let's go to the next part. ठीक है, अब ईसोफेगस जो है ये भी तो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है ना. सो इट इज ऑल्सो हैविंग 4 लेयर्स. बेसिकली अगर हम इसको अगर हिस्टोलॉजी देखेंगे तो इसमें भी कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं. ठीक है, ठीक है. नेमली सीरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, जो हमने पहले भी देखा. अब जो मस्कुलैरिस लेयर है ऊपर वाला, जो अपर 1/3 पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, हमने वो देखा. मिडिल वाला पार्ट है वो बना होता है स्केलेटल एंड स्मूथ मसल दोनों से, और जो लोअर वाला पार्ट होता है वो किससे बना होता है? सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल से बना होता है. ठीक है, तो हम एक एक लेयर के बारे में थोड़ा भी डिटेल में बात करेंगे. पहला है म्यूकोसा लेयर. ठीक है, नाउ इट हैज म्यूकोसा लेयर मींस सबसे इनर मोस्ट लेयर हमने देखा था, जो हमने डायग्राम में डिस्कस किया था. चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से अगर आप बात देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, so the mucosa layer if you see, so mucosa layer हमने देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं. Yeah, so this is the mucosa layer, right? This is the innermost layer or of the alimentary canal or the esophagus. This is called mucosa. तो इसी म्यूकोसा को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में अभी देखेंगे. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना मैं किसकी बात की. एलिमेंट्री कैनाल इज कॉमन. एलिमेंट्री कैनाल मींस इट इज इंक्लूडेड योर स्टमक, इट इज इंक्लूडेड योर esophagus, इट इज इंक्लूडेड योर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एवरीथिंग. ठीक है, तो ये जो म्यूकस होता है इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अभी डिटेल. ठीक है, उसमें क्या क्या हमें मिलेगा, क्या क्या रहता है, हम वो देखेंगे. नाउ सी द म्यूकस, इट हैज द म्यूकस ग्लैंड्स. म्यूकस में क्या होता है? इसमें म्यूकस ग्लैंड होता है. ठीक है, और जो ग्लैंड मतलब एक्चुअली जो ग्लैंड है वो बेसिकली दीज आर स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड सेल्स. ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं ना वो मॉडिफाई होकर ग्लैंड बन जाते हैं. तो वो उस तरह के सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं और ग्लैंड बन जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड बन जाते हैं. बेसिकली समझो इसको, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इसमें टिश्यू में मैंने पढ़ाया था कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, मैंने बताया था ना गॉबलेट सेल, जो सेल है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा? वो मॉडिफाई होके ग्लैंड बन जाएगा. तो बिल्कुल इस तरह के जो गॉबलेट सेल है ये यहाँ पे म्यूकस लेयर में बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा, और ये जो है म्यूकस सिक्रीट करता है. ठीक है, सो दिस इज द ग्लैंड, राइट. तो दिस आर स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड गॉबलेट सेल्स. ठीक है, और दिस आर कोलुमनार सेल्स. ये जो गॉबलेट सेल होता है इनका शेप क्या होता है? कोलम लाइक. ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कोलुमनार. ठीक है, नाउ द ईसोफेगस पार्ट इज जस्ट अ ट्यूब. नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर. सो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपको जानना चाहिए, जो ईसोफेगस है ना इसके थ्रू सिर्फ फूड जाता है स्टमक तक. ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता. फूड का डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता. ठीक है, ये सिर्फ म्यूकस सिक्रीट कर सकता है. इसमें गॉबलेट सेल होता है. म्यूकस सिक्रीट करने से फायदा क्या है? इट स्मूदन द इनर लेयर ऑफ द गट. गट का जो इनर मोस्ट लेयर उसको स्मूथ करता है. इससे क्या होगा? जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू बहुत ही इजीली स्टमक तक चला जाएगा. हेल्प करता है म्यूकस सिक्रीट करके. और कौन सा सेल ये करता है? कौन सा ग्लैंड करता है? गॉबलेट सेल. ठीक है, नाउ द फूड इज पासिंग थ्रू इट एंड रीचेस द स्टमक. अभी मैंने बताया इसके थ्रू फूड कहां चला जाता है, ईसोफेगस के थ्रू कहां तक पहुंचता है? फाइनली इट रीचेस द स्टमक. ठीक है, और ये जो ईसोफेगस है ये इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फेरिंक्स. ओके, दैट इज द थ्रू द एंटायर नेक रीजन एंड इट इज गोइंग टू कम थ्रू द डायफ्राम. तो अभी मैंने बताया आपको कि इट एक्चुअली पियर्सेस थ्रू द डायफ्राम. डायफ्राम जो क्या होता है वही मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के जो दो कैविटी है, अपर कैविटी दैट इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी, लोअर कैविटी दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी, इनके बीच में एक सेपरेशन होता है, एक लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम कहते हैं डायफ्राम. और ये जो ईसोफेगस है इट क्रॉसेस दिस डायफ्राम. इट एक्चुअली पियर्सेस, इट होल्ड्स द डायफ्राम एंड देन इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद द स्टमक. ठीक है, नाउ इफ वी टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ईसोफेगस, देन in the lumen
we can see there are ridges can be seen. अगर हम ईसोफेगस का मतलब जो है अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें एक रिजेस दिखेगा अंदर की तरफ। तो ये थोड़ा हम थोड़ा वापस उस डायग्राम में चलते हैं तो आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो इनर मोस्ट लेयर है तो आपको अंदर में ये स्मूथ दिख रहे हैं क्या? नहीं। आप ध्यान से देखो कितने सारे रिजेस है ना, बहुत सारे रिजेस दिख रहे हैं ना आपको। रिजेस मतलब क्या है? फोल्डिंग्स। ऐसे देखो फोल्डिंग्स है ना, तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। इस दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू विल फाइंड, राइट। इस तरह के स्ट्रक्चर आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो अंदर की तरफ अगर आप देखोगे सो दिस टाइप ऑफ रिजेस यू कैन फाइंड, ठीक है। ईसोफेजियल, अगर हम ईसोफेगस का अगर हम कट करके एक सेक्शन लेंगे तो अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। तो नॉर्मली क्या होता है ना, ये सब एक मैंने यहाँ पे थोड़ा और स्पेस करके बनाया है, दोनों के इनके बीच में थोड़ा खाली जगह रखा है समझाने के लिए। नॉर्मली ये क्या होता है ना, ये सब क्लोजली अरेंज होते हैं, बहुत ही क्लोजली, मतलब ये पूरा क्लोज होता है, बंद रहता है ये। तो जब एक फूड आएगा ना तब ये मतलब स्ट्रेच हो जाता है, मतलब ये स्ट्रेचेबल है, तो स्ट्रेच हो जाता है, फिर इसके थ्रू फूड पास हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द ल्यूमेन। ये क्या अंदर में जो पार्ट है इसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, so this is all about your esophagus. This much you need to discuss and study, and further we'll discuss later on when it will be required. Now stomach, next part हमारे एलिमेंट्री कनाल का हम डिस्कस कर रहे थे। कहां से स्टार्ट किया था हमने? बकल कैविटी से स्टार्ट किया था, माउथ से स्टार्ट किया था ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था वो फेरिंग्स था, उसके बाद हमने बात किया ईसोफेगस के बारे में, ठीक है। अभी हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो एलिमेंट्री कनाल का, वो क्या होता है? दैट इज योर ईसोफेगस, दैट इज योर स्टमक, ठीक है। सो ईसोफेगस स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फेरिंग, राइट, एंड ओपन्स इनटू द स्टमक। अभी हमने देखा है ना, जहां पे ओपन करते हैं उसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तभी वो ओपन होता है और जो फूड है वो स्टमक के अंदर चला जाता है। नाउ इट एक्ट्स एज अ पैसेज टू ब्रिंग द फूड which we are swallowing into the structure, that is stomach, ठीक है। So it acts as a passage to bring the food which we are swallowing into the structure, that is the stomach, ठीक है। Now next है esophagus opens into the muscular bag that is called, or the bag like structure that is called stomach। तो अगर आप देखेंगे कि ईसोफेगस, अगर डायग्राम अगर देखेंगे तो एक जो स्टमक जो है हमारा एलिमेंट्री कनाल का, ये थोड़ा सा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, एक मस्कुलर लाइक स्टमक इज एक्चुअली बेसिकली ऑब्लिकली प्लेस्ड बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के बिल्कुल नीचे ये रहता है और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और डायफ्राम के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये हमारा स्टमक रहता है, पोजीशन रहता है। लोकेशन अगर हमारा स्टमक अगर प्रिसाइसली अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ रहता है? इट प्रेजेंट लिटिल स्लाइटली लेफ्ट हैंड और स्लाइटली लेफ्ट इन द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम। सो डायफ्राम के बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट में हमें स्टमक मिलेगा, जो कि बैग लाइक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम हम देखेंगे, फिर हम वापस आके डिस्कस करेंगे सारा पॉइंट्स। सो लेट अस सी द डायग्राम वंस फर्स्ट। सो ये देखो डायग्राम ये है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, सो दिस इज द डायग्राम, फाइन। सो दिस इज द डायग्राम, या सो यू कैन सी द डायग्राम हियर। सो दिस इज द esophagus, it is connecting with the stomach, and this is the lower esophageal region, this is called cardiac orifice, और यहीं पे रहता है cardiac sphincter, muscular structure होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे muscular structure यहाँ पे बना दिखाया नहीं है, but it is present here in this area, ठीक है, which is connecting the esophagus with the stomach. Now अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डायग्राम बहुत अच्छा है। एक तो है आप देख सकते हो उसके जो स्टमक के जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको अगर हम देखेंगे तो अगर उसको हम कट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर उस पे हमें कैसा दिखेगा वो भी दिखाया है, और अंदर में जो स्ट्रक्चर होगा स्टमक का वो कैसा वो भी यहाँ पे दिखाया है। सो दिस डायग्राम इज वेरी गुड, फाइन, ठीक है। नाउ इफ you see this very carefully, so you can find that, so this is the cardiac region, this is a fundic region,
and if you see this is the muscular structure, muscles, or inside where we can find there are ridges. ठीक है, ridges होता है, इसको ridges मतलब ridges. ठीक है, this is pyloric region, this is the duodenum. ठीक है, तो बेसिकली हम जो स्टमक के पार्ट्स है उसको डिवाइड कर सकते हैं मतलब कुछ भागों में. पहला है we can divide the stomach in 4 different parts. First is your fundus, second is your cardiac, third is your body, fourth is your pyloric. ठीक है, तो हैंडमेड जो डायग्राम है उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप. सो दिस इज द एरिया. देखो अब स्टमक का जो एरिया है, स्ट्रक्चर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर. तो उसका एक एक रीजन को हमने अलग अलग नाम दिया. ये वाला रीजन जो इसको हम बोलते हैं फंडिक. अच्छा, ये वाला रीजन इसको हम बोलते हैं कार्डियक. ठीक है, और ये वाला जो रीजन है, इन जो लेटर वाला पार्ट जो है, लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक. ठीक है, हियर द स्टमक इज कनेक्टेड विद द डियोडेनम. ठीक है, हियर इट इज कनेक्टेड विद द duodenum. Where it is connected with the duodenum, that is called there is a structure or muscular structure is present. बोल सकते हो valve like structure is present, that is called pyloric sphincter. इसको हम बोलते हैं pyloric sphincter. तो ध्यान देना, esophagus के साथ स्टमक का जो कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू, जिस मसल के थ्रू, उसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर. अच्छा, स्टमक के साथ ड्यूडेनम का कनेक्शन जिसके थ्रू होता है, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. दोनों में फर्क होता है, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस the lower part of this region of the stomach is known as pyloric region. This region is known of the stomach is known as cardiac region, and this region of stomach is known as fundic region. ठीक है, तो I hope it is clear. So let us discuss the things in detail. So basically we can divide it into 4 parts: fundus, cardiac, body, pyloric. ठीक है, तो next diagram अगर आप देखेंगे, so this is the esophagus coming from the pharyngeal area, pharynx. ठीक है, and here it is open with the open through a structure that is called cardiac sphincter. ठीक है, और इसका दूसरा एक नाम भी है जिसको हम बोलते हैं esophageal gastric sphincter या cardiac sphincter. दोनों में कोई भी एक बोलो, दोनों ही सेम है. esophageal gastric sphincter भी कह सकते हैं और cardiac sphincter भी कह सकते हैं. Now this region of the stomach is called fundus, this region is called cardiac, and this is called body, and this region is called pyloric. And here again, तो यहाँ पे मार्क कर लेना, यहाँ पे आप लेबल कर लेना, मैंने नहीं किया है, शायद भूल गया मैं. तो दिस इज योर पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो ये वाला पार्ट लिख लेना, दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव द पार्ट और द मस्कुलर स्ट्रक्चर which help to connect the stomach with the duodenum, and that is called pyloric sphincter. ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि इसोफेगस के साथ स्टमक को कनेक्ट कर रहा है. दूसरा जो स्टमक के साथ ड्यूडेनम को कनेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. Now, esophagus opens into stomach through a sphincter known as cardiac sphincter or esophageal gastric sphincter. हमने डिस्कस किया है. The stomach opens into the small intestine through the pyloric sphincter. Okay. Now, if we study the histology in detail, then we can see that it is made up of the same layer, namely the serosa, muscularis, submucosa and mucosa. हमने पढ़ा था ना एलिमेंट्री कैनाल के कितने लेयर से. अगर हम हिस्टोलॉजी देखेंगे तो यहाँ पे भी स्टमक को भी अगर हम स्टमक का सेक्शन लेके देखेंगे तो उसपे भी हमें कितने लेयर मिलेंगे, वही 4 लेयर मिलेंगे जो हमने पहले पढ़ लिया है. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के ज्यादातर रीजन में, ज्यादातर पार्ट में जो नंबर ऑफ लेयर्स हमने डिस्कस किया है वो कॉमन होता है. सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये हमेशा ही रहता है. ये 4 लेयर एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह हमें मिल जाएंगे. ठीक है, तो स्टमक में भी मिलते हैं. नाउ द म्यूकोसा हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, अब जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा जो पार्ट है स्टमक में, जो म्यूकोसा पार्ट मतलब जो इनर मोस्ट पार्ट, म्यूकोसा मतलब कौन सा पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट. अभी हमने देखा कि उसका जो स्ट्रक्चर है उस पे रिजेस होते हैं, वो स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं होता है. उसमें there is a ridge like structure, ridges are present, irregular structure is present. म्यूकोसा का जो इनर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, अभी हमने जब डायग्राम में भी देखा तो स्टमक का जो अंदर में हमने देखा तो उसमें क्या रहता है, वो इरेगुलर शेप का सरफेस है. उसका स्टमक का जो सरफेस है अंदर में वो क्या है, इरेगुलर शेप का है. ठीक है, तो वो जो म्यूकोसा लेयर है उसका जो ल्यूमेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या मतलब स्टमक में क्या है, इट इज इरेगुलर, और व्हाट वी कैन से दैट इज हैविंग ridges और ridges. ठीक है, सो द म्यूकोसा हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड.
So the mucosa has the gastric gland. Now, अब देखो, अब आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक कॉमन चीज बात करेंगे, क्योंकि अभी म्यूकोसा में हम क्या देखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहता है ना, जो म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, उसका स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें कितने तरह के सेल होते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, ठीक है। तो मैं आज बस उसके बारे में आपको ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बारे में मैं एक डायग्राम देके बस बताऊंगा आपको, और उसके बारे में डिटेल में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पहले, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें मतलब शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि देखिए, हम जब भी कुछ खाते हैं, whenever we eat something ना, तो हमारा जो प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारा जो स्टमक है, उसको टाइम लगता है हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग फूड के लिए अलग टाइम लगता है, ठीक है। तो हम क्या खाते हैं वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो हमारे पेट में कितनी देर, हमारे स्टमक में कितना देर तक रहेगा, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो वो हमारे पेट में सबसे कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, दैट इज ओनली फॉर 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट अगर हमने खाया तो वो हजम हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रोटीन अगर हम खाते हैं, जैसे कि हम अगर मीट ले लिए, हमने पनीर खा लिया, प्रोटीन अगर हमने प्रोटीनेशियस कोई फूड लिया, सो इट विल स्टे 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटा रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने फैट खा लिया, बहुत सारा फैट रिच फूड अगर हमने खा लिया, जैसे घी, बटर, राइट, चीज, so then that will stay inside our stomach at least for 4 to 6 hours. तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कौन सा फूड जो है वो रहता है जिसमें फैट रहेगा। फैट रिच फूड will stay longer inside our stomach compared to carbohydrates or protein, ठीक है। So this is the basic thing you need to know before we discuss the further thing. तो यहाँ पे क्या है ना, ये बेसिकली मैंने जो डायग्राम यहाँ पे आपको बनाया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, मतलब ये अंदर वाला पार्ट है। मान लो कि ये स्टमक का पार्ट है, ये स्टमक है। इस डायग्राम को कंफ्यूज मत करना, ये अलग डायग्राम है, दिस इज अ डिफरेंट डायग्राम, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट डायग्राम, डोंट कंफ्यूज दिस वन विद दिस वन, ठीक है। इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग ओनली दिस पार्ट, अभी मैं सिर्फ इस पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं, तो इसको ध्यान दो। ये क्या है, अभी हमने बात किया था ना कि 4 लेयर होता है एलिमेंट्री कनाल का, आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद हमने बात किया था मस्क्यूलरिस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, है ना, सिरोसा, ठीक है। तो ये सब लेयर है होते हैं, उसमें जो लास्ट लेयर होता है हमने बात किया था वो होता है म्यूकोसा लेयर, ठीक है। वही लेयर मैंने यहाँ बनाया है, और ये स्टमक के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। आफ्टर दिस लेयर व्हाट वी हैव, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक, इनसाइड द स्टमक, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यूकोसा जो लेयर है उसमें हमें क्या मिलेगा, इन दैट वी कैन सी, मैंने यहाँ पे बस एक बनाया है, ऐसे मल्टीपल ऐसे म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अभी जो म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसी को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने यहाँ पे बनाया है छोटा करके, छोटा सा, जो कि स्टमक के इनर मोस्ट लेयर में है, the same thing I have drawn it here. This is the just let me make it round. Yeah, this one, this is your mucosa gastric gland and this is magnified structure. ये जो है this is the magnified structure, ठीक है, ठीक है। तो ये magnified structure है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर अभी नीचे आप देख रहे हो दिस इज द मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर जो है आपका म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं म्यूकोसा लेयर में, उसको अगर हम मैग्नीफाई करेंगे तो हमें उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में हम देख सकते हैं, और उसमें वो स्ट्रक्चर जो है वो किस किस डिफरेंट सेल से बना है, हाउ मेनी डिफरेंट सेल्स आर एक्चुअली, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल व्हिच मेक दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड. So we'll discuss all these cell and their structure in detail. ठीक है? So basically this is the structure of the gastric gland showing the major cells. तो gastric gland जो रहता है हमारे सब म्यूकोसा लेयर में स्टमक में, उसमें it is made up of different types of cell, अलग अलग सेल से बनता है. तो पहला आप देख सकते हो, this is the layer what we can see, this is the first layer, this is called, here you can see this cells are modified, this mucous glands are modified into mucus, these cells are modified, this columnar cells they are modified into goblet cells. यहाँ पे भी देखना goblet cell है, यहाँ पे भी goblet cell आपको दिखेगा, ठीक है. So these are goblet cells. ये mucus secrete करता है basically. उसके बाद आप देख सकते हो कि there is a structure of the cell which are having
the swelling which is in the our innermost area of the gastric zone or the gastric gland inside inner side में होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को मशरूम जैसा दिख रहा होगा आपको, जो अंदर की तरफ स्वेल किया है, इसको हम बोलते हैं this cells are known as oxantic cells. Then we have normal columnar shaped cells, these are called chief cells, ठीक है। Then if you see in this area there are some other cells which are also present, epithelial cells of same structure, these are called G cells, these are endocrine in nature. Then we can find there is a like cells which are having the conical structure, देख सकते हो conical structure है ना, इसको हम बोलते हैं अर्जेंट, यहाँ पे भी देख सकते हो, these are conical structure, conical shape cells, these are called argentafin cells, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था ऑक्सेंटिक सेल में जो स्वेलिंग था वो अंदर की तरफ था, अब यहाँ पे एक सेल है जो कि जिसका स्वेलिंग जो है वो मतलब बाहर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स और बेसल सेल, ठीक है। तो ये जो सारे सेल्स हैं ये इससे ये जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है, म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में होता है, तो उसमें ये सारे अलग अलग सेल्स से बना होता है। ये बेसिकली एक ट्यूबुलर ब्रांच्ड ट्यूबुलर जो मॉडिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो है ये है, और ग्लैंड जो हम कह सकते हैं, तो बेसिकली इट्स अ सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है ना, इट इज अ सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। ये क्या है ना, सिंपल ब्रांच, देखो ब्रांच दिख रहा है ना आपको, ब्रांच, ये देखो बहुत सारे ब्रांच है। सो दिस इज सिंपल ट्यूबुलर सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। हमने जब टिश्यू पढ़ा था तो उसमें देखा था ना ब्रांचिंग, ठीक है, ग्लैंड्स के बहुत सारे ब्रांचिंग होते हैं, तो दिस इज अ सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। और इसमें कितने तरह के सेल्स हमें मिलेंगे, ऑक्सेंटिक सेल, चीफ सेल, अर्जेंटाफिन सेल, स्टेम सेल और बेसल सेल, जी सेल, गॉबलेट सेल, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल इसमें हमें मिलेंगे। अब ये सारे सेल का स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है, ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।